जेठ ने की अपनी भाभी पर जुल्म की इंतहा। सर जी मैं अपने ना मापिਆਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। इन्होंने उसे दरिया पर लेकर जाकर सर के बाल काट दिए। सिर्फ जी एक सिर मुन्या से हैं? सिर्फ वाल कटे थे, सिर्फ वाल कटे सन? ठीक है। क्यों कटे सन? बस गुस्से से काट लिया। गुस्से से कटे। आसिया बीबी के खामद और उसके जेठ ने उन्होंने जनाब इस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके इसके बाल काट दिए। आज तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं बस ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਟੋਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ नहीं ਇਹਦੇ जी, ਤੇ? बस तो बस तो हैं? बस तो डायरेक्ट मंगो माफी दो। माफ़ कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें सुनकर और देखकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया सराय मुग़ल के इलाके में, जहां पर एक मज़लूम भाभी को उसके जेठ ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी तज़लील की और फिर उसके बाल ही काट डाले। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जेठ का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मजलूम लड़की जिसे बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया इसके जेठ के हाथों। और जो FIR के मुताबिक जो हमारे पास FIR हमें मौसूल हुई उसमें ये भी है कि इसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई है या करने की कोशिश की गई है और इसके बाल तक मोड़ दिए गए हैं। टोटल इसके बाल जो हैं वो काट दिए हैं उन्होंने। आम अल्फाज में सर उसका मुंह डाला उन्होंने। बात करते हैं उससे। अच्छा की मामला की है की मसला सी ये शादी ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ? 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ? 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੰਦੀ ਪੁੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਲਗਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੰਬਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਠ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਖਾਵਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਠ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਿਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਧਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ। ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇਠ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਕਵਾਲ ਕਰਤੇ। जेठ के और खामद के हाथों बदतरीन तशद्दुद का शिकार एक औरत, जिसे बड़ी बेरहमी से ना सिर्फ खामद और जेठ ने मारा पीटा बल्कि उसके बाल भी काट डाले। इस वाक़े का नोटिस लिया जी DPO कसूर सुहेब अशरफ साहब ने और इस मजलूम खातून को इंसाफ दिलाने के लिए डेफिनेटली SHO थाना सराय मुग़ल नसरुल्लाह भट्टी साहब और उनकी टीम ने भी बड़ी कोशिश की है DPO साहब के अहकामात पर। और अपने तौर पर उन्होंने जो भी तहकीकात की हैं उस चीज़ में जो चीज़ सामने आई है, जो जेठ है
जो कसूरवार है जिसने मारा है इस औरत को और उसके बाल काटे हैं उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे SHO थाना सराय मुगल नसरुल्लाह भट्टी साहब से। नसरुल्लाह साहब, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा कि ये ओवरऑल जो रिपोर्ट हुआ में वाक़या वो तो मैंने बता दी, लेकिन जब आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज़ सामने है, मामला है क्या था? ये मामला ये है कि जो इस आसिया बीबी का खामन था उसका नाम है नदीम और उसका भाई है नूर अहमद। ये दोनों इस पर शक करते थे कि इसका जो करैक्टर है वो सही नहीं है। इन्होंने उसे दरिया पर लेकर जाकर इस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद उसके सर के बाल काट दिए। यही जो बात है यह मैंने अपने DPO साहब को बताई उन्होंने, क्योंकि हम DPO साहब की एक वाज़ेह पॉलिसी है कि जहाँ पर भी ख़वातीन के साथ तशद्दुद हो फौरी एक्शन करें। हमने फौरी एक्शन करके जो मुलज़म था नूर अहमद उसे भी गिरफ़्तार कर लिया और मुतासरा औरत को थाने लाकर जो भी उसकी फर्दर कार्रवाई FIR वगैरह दर्ज की है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या मामला था, क्या जेठ क्यों इतना जुल्म करता था अपनी छोटी भाभी पे और इतना तशद्दुद भी किया उस पर? शक था या खुद इसका कोई इसके ज़हन में कोई फतूर चल रहा था? नहीं, इसके ज़हन में वो खुद ही कह रही है कोई ऐसा फतूर नहीं था, सिर्फ ये शक था क्योंकि इससे पहले भी एक पर्चा हुआ था 384 बटा तकरीबन है 20 जो ये आसिया बीबी के भाइयों ने इसकी बेटी को अगवा कर लिया था। उस बिना पर ये इनकी लिटिगेशन चल रही थी। ये उस चीज़ की लड़ी है, ये उस चीज़ की बात है, इसलिए इन्होंने जो ये उस चीज़ का भी बदला लिया था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो जेठ जिसने अपने भाई के साथ, यानी कि जेठ था और एक उस औरत का खावन था, जिन्होंने मिलके तशद्दुद का निशाना बनाया। इसने अपनी छोटी भाभी को और इसके छोटे भाई ने अपनी बीवी को, फिर उसके बाल भी काट दिए। मामला ये है कि वो जो लड़की है वो बहुत गरीब, ना उसका वालिद ज़िंदा है ना वालदा। भाई दो उसके जो हैं वो भी जेल में हैं, वो भी बकौल उसके कि इन्होंने गिरफ़्तार करवाया उन्हें। और अब मामला ये है जी कि इन्होंने उस लड़की पर, उस औरत पर जो है जुल्म किया। आज के प्रोग्राम में हम ये ज़रूर बताएंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि बहुत सारे गरीब जो लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं होती अक्सर जगहों पे, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर जब खबर पता चली कि औरत पर उसके जेठ ने, उसके खावन ने जुल्म किया, उसके बाल काटे हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, तो DPO सोहेब अशरफ साहब ने फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लिया और अहकाम जारी किए। और जो SHO सराय मुगल हैं नसरुल्लाह भट्टी, उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, उस मजलूम की दादरसी की जिसके बाल काट दिए गए थे और इस जेठ को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया। बात करते हैं जी क्यों इतना गुस्सा आया इन दोनों को, इसको और इसके भाई को, उस औरत के खावंद और उसके इस जेठ को। क्या मामला है, कब से झगड़ा चल रहा है, कब से ये जहर जो है इनके दिलों में था? की ना जरा नूर जी नूर की करना जी करना भाई तो कम करना मशीना सलेम मशीन जिम्मेदारा? बनानी, सलेम मशीन बनाने की सिलाई मशीना जी, गली मोटरसाइकिल थे। अच्छा, कितने देर से तो शादी होगी तेरे भाई दी? मेरी जी शादी में 10 साल हो गए ने। तेरी शादी में 10 साल होए? नहीं, मेरे भाई दिन तेरे भाई दी शादी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜੇ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? जी बस ज़्यादा ही हो गए होंगे। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। नहीं जी, 3 बच्चे, 4 चौथा होने वाला है, 3 बच्चे कोल है। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੇ? सर असी तो गुस्सा नहीं करते, लेकिन बस असी जी साढ़ा झगड़ा होया सा सन 2020 च। ਕੀ ਝਗੜਾ ਸੀ? झगड़ा सी जी, बच्ची स्कूल पढ़ती सी जी। असी उधरों इस थाने आए सा ਕਿਹਦੀ कोई ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਕੂਲ? मेरी भैन जी मशेरा, ਅੱਛਾ, वो इसने गवाह कर ली, तेरे भाइयों ने करवा ली इनू कह के ਕਿੰਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ? जी। राशिद, आसिफ ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ? जी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ? जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? वो स्कूल तो गवाह करके ले गए और 2 बंदे ज्यादती की थी, उन्हें कहा पढ़ लिया। उसके साथ असी कानूनी कार्रवाई की थी। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਾਤਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। नहीं जी, नहीं मर्जी ना नहीं गई सी, उसके बयान कचौड़ के बयान हुए अदालत में, उसका कोई ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾ ਇਹਦੇ? नहीं जी। वो असी तो माफ़ करने, लेकिन वो माफ़ी ने साढ़े बूहे ते नहीं है माफ़ी पारों।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਈ ਏ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जेठ ने की अपनी भाभी पर जुल्म की इंतहा। एक मजलूम भाभी को उसके जेठ ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके बाल ही काट डाले। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। इन्होंने उसे दरिया पर लेकर जाकर सर के बाल काट दिए। सिर्फ जी एक सिर मुन्या से हैं? सिर्फ वाल कटे थे सिर्फ वाल कटे सन? बस। क्यों कटे सन? बस गुस्से से काट लिया। गुस्से से कटे। आसिया बीबी के खामद और उसके जेठ ने उन्होंने जनाब इस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके इसके बाल काट दिए। आज तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, बस ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਟੋਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ नहीं ਇਹਦੇ जी, ਤੇ? बस तो बस तो हैं? बस तो डायरेक्ट मंगो माफिया तो। माफ़ कर दो। अब ये मामलात नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जिस तरह की ये लड़की बता रही है 5 साल हो गए इसकी शादी को, 3 बच्चे हैं और FIR के मुताबिक तो ये कहा गया है कि उस पर जो है उसने ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन है कि कुछ इसके भी मामलात हैं। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इसके 3 बच्चे हैं और गरीब लोग हैं और इसने अपना घर बचाना भी है और बसाना भी है और हमारे मुआशरे में न जाने कितनी औरतें हैं। इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी जेठ जो है वो अपनी छोटी भाभी को और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाता था, तशद्दुद का निशाना बनाता था और उसको नुकसान पहुंचाता था, गलत नज़र रखता था। लेकिन है कि वो 8-10 साल तक बेचारी खामोश रही, लेकिन जब पानी सर से गुज़र गया तो फिर उसने जो है खुल के बात की। अब ये भी बच्ची है, अब बाल कटवा के, तशद्दुद का निशाना बन के, मार खा के, तजलील करवा के, जलील हो के भी बेचारी अभी भी ये चाहती है जी कि वो खुद बता रही है जी कि वो कुछ नहीं है। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਭਾਈ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ये ਸਕਦੀ। मजबूरी है इस औरत की। ਜੀ ਸਰ ਜੀ इसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इसको जानवरों की तरह मारा गया, इसके बाल काटे गए, इसको धमकियां दी गई। लेकिन यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे DPO कसूर सुहेब अशरफ साहिब को और उनकी पूरी टीम को, कसूर पुलिस और सराय मुगल की जो पुलिस है, SHO नसरुल्लाह भट्टी, उनको कि इस गरीब औरत की बात किसी ने सुननी थी। बेचारी खुद जो अपनी बात नहीं बता पा रही डर के मारे, अभी भी ये डरी हुई है शदीद, डर के ही ये अब ये सोच रही आगे चल के होगा क्या। बेचारी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पुलिस बाकायदा केस स्ट्रॉन्ग लेके अदालत जाएगी। अब ये क्या करेगी, ये मजबूर होकर डर के राजीनामा कर लेगी। है जी, करोगे? जी सर जी। ये है हमारे मुआशरे का अलमिया कि एक गरीब औरत बेसहारा है, उसका कोई आगे पीछे नहीं, इसलिए जुल्म सहेगी है। बाल इसके सारे ख़त्म कर दिए उन्होंने, टेंड कर दिए इसकी, लेकिन क्यों सह रही है जुल्म कि जी कोई इसका आगे पीछे नहीं। लेकिन जब इदारे काम करते हैं, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, DPO साहब के अहकामात पर, बंदा गिरफ़्तार है, जेठ गिरफ़्तार है, इसके लिए कहने पे FIR भी दर्ज होगी, सब कुछ है। अब साथ ही इसको पता नहीं क्या कहा गया है बेचारी को। बहरहाल जो हुआ वो गलत हुआ, जो उन्होंने किया है तो गलत किया ना। जी सर जी। तुसी वो गलत काम किया? नहीं सर। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा नदीम संदूर, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी नदीम बताइएगा। जी कैसर भाई, इसका जेठ और इसके खामद ने, आसिया बीबी के खामद और उसके जेठ ने, ये दोनों ने शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को, उसके खामद ने अपनी जेठ के, उसके भाई के साथ मिल के उन्होंने जनाब इस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके इसके बाल काट दिए और बाल काटने के बाद फिर उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे, जिसके ऊपर DPO कसूर सुहेब अशरफ साहब ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए और जनाब इनको गिरफ़्तार किया है, मुलज़मान
सामान को गिरफ़्तार किया है। इसमें से एक जो है इसका खावन वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका और इसके जो जेठ को है वो उन्होंने पुलिस ने मौका पर गिरफ़्तार कर लिया था। मेन मुलजिम जेठ ही है जिसने बाल काटे। जी जी, मेन मुलजिम जेठ और को गिरफ्तार करने की पुलिस को जी 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 बार बार रेड की है। ये नाज़रीन, अभी इस शख्स ने जो जुल्म किया, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ 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 ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੀ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਮਗਰ ਗਈ ਬੱਚੀ ਪਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰੋਂ ਗਈ ਵੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਸਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋਜੇ ਮਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫੜੀਚੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਸਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂ ਸਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ? ਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੁਲਾਹਪੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ जेठ ने की अपनी भाभी पर जुल्म की इंतहा। एक मजलूम भाभी को उसके जेठ ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके बाल ही काट डाले। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। इन्होंने उसे दरिया पर लेकर जाकर सर के बाल काट दिए। सिर्फ जी एक सिर मुन्या से हैं? सिर्फ वाल कटे थे, सिर्फ वाल कटे सन? बस। क्यों कटे सन? बस गुस्से से काट लिया। गुस्से से कटे। आसिया बीबी के खामद और उसके जेठ ने उन्होंने जनाब इस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके इसके बाल काट दिए। आज तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, बस ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ नहीं ਇਹਦੇ जी, ਤੇ? बस तो बस तो हैं? बस तो ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। माफ कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਾ? ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਾਈ ਫੜਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਆਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪੀ ਜੇਠ ਦੀ ਭੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਵੱਡੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਧਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਦੋ ਕਸੂਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸੀ। ਜੇਠ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਭਤੀਜੀ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੂਠੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖਣ, ਇੰਜ ਕਰਨ ਇੰਜ ਕਰਨ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ?
ਇਹੋ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਗਮ ਚ ਅੱਬੂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਨ ਵੀ ਫੌਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਗਲਤ ਇल्ज़ाम ला के ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ वालन कर देते हैं। जी सर। ये जी मामला सारा इसने बता दी, इसने अपनी मजबूरी भी बता दी इस औरत ने, इस लड़की ने। उम्र कितनी तेरी? 30 साल हो जाएगी। इसने अपनी ये मजबूरी भी बता दी है कि ना इसका कोई आगे है ना पीछे है, भाई ऑलरेडी गिरफ्तार हैं इसके। और लेकिन जो हुआ है वो बड़ा, ये हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है ये, कि औरत को कमज़ोर समझ के, उसको लावारिस समझ के बाज़ जगहों पर जो खावंद हैं या जेठ हैं इस तरह के मामलात करते हैं। बहरहाल हमारा मकसद था कि इस औरत की जो इसके साथ जो जुल्म हुआ उस पर हम बात भी करें, लेकिन वो ख़ुद इतनी मजबूर है, कह रही है जी कि मैं तो उनको माफ़ कर दूँगी। लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे DPO कसूर शोएब अशरफ साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक ऐसी औरत जो कि जुल्म सहे जा रही है और बोल भी नहीं रही, उसकी भी बात सुनी। और एटलीस्ट इसके जेठ को इतना एहसास तो हुआ कि इसके कोई आगे पीछे अगर नहीं है तो एटलीस्ट कानून ज़रूर मौजूद है जो उसको पकड़ भी सकता है, और अगर वो दोबारा इसके साथ कोई मसला करेगा तो उसको सज़ा भी दिला सकता है। ये अब इसकी अपनी मजबूरी है जी कि उसको माफ़ कर रही है। बहरहाल जो इस औरत पर जुल्म हुआ, इस तरह के मजालिम जो हैं, बहुत सारे घरों की कहानियाँ हैं, और इन मजालिम को अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक हवा की बेटी पर जुल्म किया जाता रहेगा। और ये इन्होंने कहाँ पर दरिया पे लग जाकर, दरिया पर, ये इधर गांव है ठट्ठा कमियाना, उसके साथ दरिया है, वहाँ पर उसने बाल इसके काटे हैं, बाल काटे हैं। और उसके बाद ये खातून फिर उसने खुद आपसे रब्ता किया है यहाँ की? ये हमें इत्तला मिली ना जी, ये वाक़या हाँ जी, तो हमने ये जो ऐसा वाक़या जी, ख़वातीन पर जुल्म और शक की बुनियाद पर उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाना, जुल्म और सितम का निशाना बनाना, ये सरासर गलत है जी। और जेठ और खावंद ने महज शक की बुनियाद पर इस औरत को मारा है और इसके बाल काटे हैं, उसकी तजलील की है, तशद्दुद किया है, और ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे कोई भी इलाका हो। लेकिन DPO कसूर शोएब अशरफ साहब और उनकी पूरी टीम और SHO थाना सराय बगल नसरुल्लाह भट्टी, इन्होंने बरवक्त कार्रवाई की है जी। इन जालिमों के खिलाफ मज़ीद हम बात करेंगे, उस औरत से भी और उस जालिम जेठ से भी, क्योंकि अगर खुदा ना खासा शक है या इस तरह का मामला है तो उसको तरीके से ख़ानदान में बैठ के, बड़ों के साथ बैठ के इसको हल किया जा सकता था। लेकिन इस तरीके से एक औरत को दरिया पर ले जाना, उसका शौहर भी तशद्दुद कर रहा है, जेठ भी मार रहा है और फिर बाल काटे जा रहे हैं। और ये बहुत सारे घरों में इस तरह के मामलात होते हैं जहाँ पर जहालत है, जहाँ पर लोग औरत का एहतराम नहीं करते हैं, तो ऐसे ही औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब भी कर रहे हैं, और जिस तरह पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की इस चीज़ को भी दिखा रहे हैं, और उन जालिम जो हैं उनको भी कानून के मुताबिक सजा दिलवाने में हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। जेठ ने की अपनी भाभी पर जुल्म की इंतहा। एक मजलूम भाभी को उसके जेठ ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके बाल ही काट डाले। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। इन्होंने उसे दरिया पर लेकर जाकर साथ के बाल काट दिए। सिर्फ जी एक सिर मुन्या से हैं? सिर्फ वाल कटे थे, सिर्फ वाल कटे सन? जी, बस। क्यों कटे सन? बस गुस्से से काट लिया। गुस्से से कटे। आसिया बीबी के खामद और उसके जेठ ने, उन्होंने जनाब इस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके इसके बाल काट दिए। आज तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं बस ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਟੋਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦੇ जी ਤੇ? बस तो बस तो हैं? बस तो डायरेक्ट मंगो माफिया दो। माफ़ कर दो।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਮਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਦੋਂ ਕੱਟੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਵਾਲ ਤੇ ਜੀ ਘਰ ਟੂਬ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤਸਦੀਰ ਮੇਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਵਾਲ ਜੀ। ਹੈ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੂਬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ में काट ਮੰਗੀ है। सकते? नहीं जी इकल्ले ट्यूब बस लाई सी ते वो मैंने माफी मंगी छाड़ता सी बस। अब ये जो खुद बता रहा है जी सारे मामलात कि जी इसने बाल काटे हैं कि किस कानून के तहत ये सुनी सुनाई बात पर यकीन करके इल्ज़ाम लगा के अपनी ही भाभी के इसने बाल काट दिए ख़त्म कर दिए बाल सर के और बाद में पता चलता है उसका कसूर ही कोई नहीं जब पकड़ा गया तब माफिया मांग रहा है यानी कि तू समझा कि ना माँ है ना प्यू है कोई भी नहीं। हम जहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे जी डीपीओ कसूर सोहेब अशरफ साहब को ये शख्स जो अभी माफिया मांग रहा है उस भाभी से जिसके बाल इसने काटे हैं ये कभी भी माफिया ना मांगता अगर पुलिस ने इसको पकड़ती। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है। अब ये बातें कर रहा था जी कि इस पर इल्ज़ाम लगाया जी मेरी भाभी पे इसी के मैके वालों ने, मैंने सुनी सुनाई बात पर अमल कर लिया और फिर मैंने जनाब गुस्से में आके इसके बाल काट दिए और फिर बाद में पता चलता है जी कि इसका कसूर ही कोई नहीं है। अब ये इसे माफिया मांग रहा है और वो कह रहे हैं जिसने मुझे माफ़ कर दिया है। तो हम भी ये आमने सामने इसलिए कर दिए कि प्रॉपर तरीके से ये माफ़ी मांगे ताकि पता चले कि अगर ये किसी गरीब के साथ किसी मजलूम के साथ कोई इस तरह का जुल्म करेगा तो उसको इसी तरह माफिया भी मांगनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे डीपीओ कसूर सोहेब अशरफ साहब और उनकी पूरी टीम को, सराय मुगल के SHO नसरुल्लाह भट्टी और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस मजलूम की आवाज़ सुनी। ये खुद डर के मारे ये कोई केस भी नहीं करना चाह रही थी और ये अगर पकड़ा ना जाता तो कभी ये माफ़ी नहीं मांगता। हाँ जी की पता लगा जी ए कौन है जी जी मेरी भरजाई जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ जस सो जो किया मैं माफी ਨਹੀਂ मांगी। ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ सिर्फ जी एक सिर मुन्या सी, ਹੈ सिर्फ वाल कटे थे ਸਿਰ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਸਨ ਜੀ, ਬਸ। ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਸਨ बस गुस्से से काट लिया ਗੁੱਸੇ 'ਚ सी। ਕੱਟੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ। जी मंजूर है। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। देखो जी क्योंकि ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ नहीं जी बस ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ नहीं ਇਹਦੇ जी ਤੇ बस तौबा ਹੈ अस्तगफुर ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ माफ कर दो जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਮਾਫ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਨੀ ਜੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੰਗੀ बस सर मैं अपील करना जो भी कोई दुनिया ते रहता है या रहता है कोई बहन भाई है लेकिन किसी मगर ला के ये काम ना करे, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ये काम ना करे, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾ ਬਣੇ ਬੰਦਾ ना बने जी हैं? बिल्कुल। ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। हाँ मैं अपील कर पाकिस्तान पूरे अभी ये टीम जुर्म नकाब ने एक जालिम को और एक मजलूम को आमने सामने कर दिया और ये जालिम शख्स की हैवानियत उस वक्त देखने वाली होगी जब ये हाथ बांध रही थी उसके आगे, ये माफिया मांग रही थी, इसको रहम नहीं आया। हमारी कोशिश है टीम जुर्म नकाब की कि कभी भी हम किसी मजलूम के साथ जुल्म ना होने दें और ऐसा ही किया डीपीओ साहब ने भी, वो भी हमेशा ही कोशिश करते हैं। और ये शख्स अभी गिरफ्तार है और माफिया मांग रहा है उस औरत से जिसको ये तजलील का निशाना बनाता रहा है और इसने खुले दिल से इसको माफ़ कर दिया। बहरहाल ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? सर होएगी ही नहीं जिंदगी अच्छी, बस होएगी नहीं। अगर इंसान का बेटा होया मुसलमान तो करांगे नहीं। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मुसलमान ਦਾ ਹੀ बेटा ना तू। जी जी कह रहे नहीं होएगा बस सर। बहरहाल जी ये तो अभी मामला अदालत में जाएगा, एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं और आगे चलकर जो मामलात होंगे डेफिनेटली जो कानून के मुताबिक फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन इसने माफ़ी मांग ली, इसने माफ़ कर दिया। टीम जुर्म नकाब ने जालिम और मजलूम का आमने सामने कर दिया। उस बच्ची को जिसके बाल काटे इस जालिम ने उससे माफ़ी भी मंगवा दी ऑन स्क्रीन। और हम यही गुजारिश करेंगे कोई किसी पर जुल्म ना करे, कोई किसी पर तशद्दुद ना करे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और अल्लाह ताला हर किसी की बेटी और बेटों के नसीब, बेटियों और बेटों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज।